So today we will see how shall we find geometrically the value of angles of 45 degree. Find geometrically the values of sine 45 degree, cos 45 degree, tan 45 degree dot and see here. Find geometrically the value of sine 45 degree, cos 45 degree and tan 45 and so on. Means for all 6 trigonometric ratios, how shall we find the value of 45 degree geometrically? So draw here a right angle triangle. Let this angle is 45 degree. So this will also become 45 degree. Let here triangle ABC is a right angle triangle and a right angle at B, and AB equals to BC. It is isosceles right angle triangle. Means it's this side is equals to this side is equals to x से मान लिया गया कि ये दोनों जो साइड्स है ये भी x है और ये भी x है. Therefore AC will be equals to root over AB square plus BC square. So this will become x square plus x square. So it will be root over 2x square. Finally it will be root 2x. So its hypotenuse will become under root 2x. Now if we write here sine 45 degree, cos 45 degree, tan 45 degree, cosec 45 degree, sec 45 degree and cot 45 degree. So sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse. If you take angle this, so according to this angle, perpendicular is AB and hypotenuse is AC. So it will be AB by AC will be equals to x upon under root 2x. So x will be cancelled, it will be under root 1 by under root 2. If you take this angle, the base will be BC and hypotenuse is AC. So it will be BC by AC. Again here AC x by 2 root x. This will be 1 by under root 2. Tan 45. In tan, we know that it is the ratio of perpendicular and base. So it will be AB by BC. Here AB is x, BC is x, so its value will be 1. So if we have find out the values of sine 45, cos 45, tan 45, so their inverse ratios are cosec, sec and cot. Cosec is the inverse of sine, so it will become root 2, it will also become root 2 and it will be 1. So in this way, we can find the values of all trigonometric ratios of angle 45 degree geometrically. अब तुम्हें ज्योमेट्रिकली एग्जाम में एक वैल्यू भी पूछेगा तो ये सारा यहां तक लिखोगे और जो वैल्यू कहेगा वो निकाल लोगे. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन.
हैव यू नोटेड इट? नोट कर लिए इसको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, ये मैंने पिछले दिन बताया था कि हाउ शेल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 degree and 60 degree of any ratio geometrically. Today I have explained this 45 degree. Now two angles are remaining, 0 degree and 45 degree. How shall we find the value of 0 degree for all ratios and 90 degree for all ratios geometrically? अगर ज्योमेट्रिकली 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालने को अगर आता है तो हाउ शैल वी फाइंड? इसमें थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। अगर हम लोग इस एंगल्स को 0 डिग्री कर दें तो क्या होगा? If we have to find the values of 0 degree for all trigonometric ratios, तो सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बना, इट इज ए बी सी। यहाँ का एंगल कुछ है, ये देखो ये एंगल कुछ है। अगर इस एंगल को, ये एक मान लो इस तरह से ये लाइन है, इस लाइन को हम खींच के अगर बीसी पे ला देते हैं, व्हेन द लाइन CA coincide with BC, then angle C will become 0. जब ये एंगल 0 होगा तो ये AC किससे कोइंसाइड करेगा? BC से। मीन्स ये जो हाइपोटेनस है हमारा, ये BC पे आ जाएगा और ये AB विल बिकम 0। देखो इसको खींच के जब यहाँ लाएंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 0। तो साइन 0 डिग्री में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो व्हेन दिस परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल जब 0 होगा तो ये हमारा AB क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और हाइपोटेनस कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। सिमिलरली cos 0, अगर यहाँ cos 0 मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस, तो सी हियर अगर AC और BC कोइंसाइड करता है तो ये दोनों इक्वल हो गए, मीन्स AC इज इक्वल्स टू BC। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। एंड इन tan इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हियर ऑल्सो देखो ये परपेंडिकुलर तो 0 हो गया और बेस अब कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। जब इन तीनों का वैल्यू निकल गया तो रेस्ट यू कैन फाइंड इजीली, बिकॉज इनका इनवर्स रेशियो ही होगा। अब देखो दूसरा फिगर, अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो, क्या हो रहा है कि हम इस ट्रेंगल में जब इस एंगल को 0 कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारा AB विल बिकम 0। ये परपेंडिकुलर खत्म होगा, ये लाइन इस पर आ जाएगी, मतलब ये हाइपोटेनस और बेस कोइंसाइड होगा। तो हाइपोटेनस और बेस कोइंसाइड होने का मतलब है कि उनका वैल्यू सेम ले लिया गया। तो कॉस में बेस बाई हाइपोटेनस, सो इट्स वैल्यू इज 1। साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर 0, तो हाइपोटेनस कुछ भी हो 0 होगा। tan के साथ भी वही है, परपेंडिकुलर 0, बेस कोई भी नंबर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सो नोट इट डाउन। हाँ जी, किसी को दिक्कत है? इसमें किसी सर को साइड प्लीज। साइड ही हूँ मैं तो कुछ
सर पी मतलब हाँ, P means perpendicular. P means perpendicular. सर Yes. सर cos 0 डिग्री का बता बेस दीजिए, cos 0 बेस डिग्री। Hmm. Cos is the ratio of base and hypotenuse. तो ये जब AC BC पे आएगा तो सेम लाइन हो गई, तो सेम लाइन हो गई तो बेस और हाइपोटेनस सेम लाइन है, मतलब दोनों कैंसिल होकर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सर बोलो। सर जब लाइन सी ए बी सी पे कंसाइड होगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, सी का वो नहीं समझ में है। ये लाइन एक है और यहाँ कुछ मान लो ऐसा स्प्रिंग लगा, इसको खींच के इस BC पे ला दिया गया, तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, ये लाइन है, इसको हम पकड़ के इस BC पर ला दिए यहाँ पर, तो ये जो एंगल है ऐसे ऐसे घूम के जब इसी पे आ जाएगा तो एंगल क्या बन जाएगा, 0। तो वही तो है, 0 लिया गया। जब 0 एंगल होगा तो ये BC पे होगा। हाँ जी बोलो। यस। cosec 0 डिग्री कैसे? किसका? साइन का इनवर्स कॉसेक होता है। सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। सेक 0 डिग्री का मतलब हो गया इट इज इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस 1 है तो सेक भी 1 होगा। यहाँ होता है कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री। कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, 0 का इनवर्स होता है इनफाइनाइट। tan का इनवर्स होता है कॉट, कॉट 0 डिग्री इज ऑल्सो इनफाइनाइट। सर हाँ बोलो। सर हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा होता है 90। यहाँ पे जब एंगल 0 हो गया तो हाइपोटेनस इस BC से कोइंसाइड हो गया, मतलब BC और CA सेम लाइन बन गई। यहाँ अब राइट एंगल ट्रायंगल रहा ही नहीं, ये जो वैल्यू है यहाँ आगे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये हमारा AB हाइपोटेनस ही खत्म हो गया। एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 0 हो जाए तो वहां पे वो ट्रायंगल ही नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल होगा भी कहां से, वो तो एक साइड ही गायब हो जा रहा है ना। हो गया ये। नेक्स्ट है, अगर इन्हीं को हम 0 के जगह क्या कर दिए, 90 डिग्री कर दिए, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, इनको चेंज करके 90 डिग्री कर दिया जाए। साइन 90, कॉस 90, tan 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री बनाने के लिए व्हाट शैल वी डू, इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ C से पकड़ो और इसको खींच के AB पर ला दो, तो AB और AC जब कोइंसाइड हो जाएगा, when the line CA coincide with the AB, then angle C will become 90 डिग्री। तो ये जो एंगल C है, ये देखो यहाँ से आप पकड़े, इसको खींच के इस पर ला दिए, तो ये जो CA है जब इस पर आ जाएगा इसी लाइन पर, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का होगा। ध्यान से देखो, जब AC AB पे आया तो क्या हो गया, ये एंगल भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल 90 के बन जाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कोइंसाइड करेगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कोइंसाइड मींस their value will become 1, base will become 0 here। देखो जब इसको खींच के यहाँ ला दिए, यहाँ से पकड़ के, तो ये बेस BC will become 0, तो 0 by any number is equals to 0। tan में देखो परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर इज समथिंग एंड बेस बिकम्स 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें देन इट विल बिकम इनफाइनाइट।
आया समझ में इसमें? सी दिस, अगर हम इस AC लाइन को अब यहाँ से पकड़े और इस पे ला दिए, एक बार जीरो बनाने के लिए यहाँ से इस पर लाए थे, इसको अब यहाँ पर यहाँ ला दे रहे हैं, देन दिस एंगल C विल बिकम हाउ मच, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब बनेगा तो आवर बेस विल बिकम जीरो एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस विल कोइंसाइड। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कोइंसाइड होने का मतलब है कि देयर वैल्यू विल बिकम 1 एंड हियर बेस इज बिकमिंग जीरो। तो जीरो बाई हाइपोटेनस विल बी जीरो and in tan 90 degree P by B base is 0, so it will become infinite. Similarly, the rest three ratios can be written. जो बाकी तीन रेशियो है, इसका साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, सेक कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है. You can write yourself. म्यूट योरसेल्फ. अगर कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट रखो अपने आप को. सर एक बार 30 और 60 डिग्री का बता दीजिए समझ में. किसका? 30 और 60 डिग्री का बस साइन. 30-60 में क्या एंगल ट्रायंगल बनाए थे हम लोग, ये हो गया. हैव यू नोटेड इट? यस सर. यस सर. Yes, sir. थर्टी एंड 60 डिग्री में हम लोगों को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना था, ABC. ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिए AD. तो ये एंगल 60 का होगा, ये एंगल कितने का होगा? 30 का होगा. इसके ऑल साइड को अगर 2x ले लेते हो तो ये x और ये भी x होगा. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ही दिस AD will be under root 3x. Now in triangle ADB, देखो साइन 30 डिग्री, सारे रेशियोज का यहाँ लिख लो. अकॉर्डिंग टू दिस एंगल परपेंडिकुलर इज BD and hypotenuse is AB. Here BD is x and AB is 2x, so it will be 1/2. Mute yourself. Hello, रोहित पाल. रोहित पाल जरा म्यूट कर लोगे अपने आप को. ये रोहित पाल, तुम्हें मैं रिमूव कर दूंगा अगर म्यूट अभी नहीं करोगे तो. सी हियर, यहाँ देखो साइन 30 का वैल्यू आ गया. सिमिलरली कॉस 30 में क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस. अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बेस इज AD and hypotenuse is AB. AD is under root 3x and AB is 2x. It will be under root 3/2. बाकी का लिख लेना यहाँ पे. If you want sin 60, कौन है भाई, क्यों नहीं म्यूट कर रहा है ये? sin 60 according to this angle AD is perpendicular and AB is hypotenuse. It will be AD by AB. AB under root 3x and AB is 2x. You get here under root 3/2. Similarly, you can write. बाकी तो लिख सकते हो ना. देख लो इसमें, सी हियर, ये 30 और 60 के सारे रेशियोज निकाले जा सकते हैं फ्रॉम दिस ट्रायंगल ADB. हो गया? हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. यस सर. अनंत यस सिंह, सर. अनंत सिंह यस सर. यस आ गया सर. समझ में? ये आ गया.
Yes, sir. Okay. तो ये in this way our this exercise 8.2 is completed now. Our next topic is trigonometric ratios of complementary angles. T ratios of complementary angles. यहाँ देखो complementary angles means what? When sum of two angles is 90 degree, then angles are known as complementary. अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये तो मालूम है ना. यहाँ देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, if we have ABC, a right angle triangle, right angle at B, and if we take this angle theta, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो what will be this angle? 90 डिग्री माइनस थीटा. ध्यान से देखो जरा इसको. इसमें अगर हमने थोड़ा सा ये बाहर चला गया और अंदर किया जाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ABC is a right angle triangle, right angle at B, and if we take this angle theta, so what will be value of this? ध्यान से देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, उसमें अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल. ये इसे थीटा कहते हैं और थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल. तो C का वैल्यू क्या होगा बताओ? 90 90 minus theta. This angle will be 90 degree minus theta. Very good. अब degree देखो minus theta. इसका साइन, अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी व्हाट? cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, and tan 90 डिग्री माइनस थीटा will be equals to what? अब देखो according to this angle perpendicular is AB and hypotenuse is AC, so it will be AB by AB upon AC. तो देखो ये AB upon AC हो गया. अब इस एंगल के हिसाब से according to this angle थीटा, ये AB क्या है बताओ? और AC क्या है? AC क्या है? What is this AC? Hypotenuse. तो बेस बाई हाइपोटेनस. देखो ये बेस बाई हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं हम लोग? सर cos थीटा होगा. ध्यान से देखो इस एंगल के हिसाब से ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो वी कैन राइट cos थीटा. तो फाइनली वी गेट हियर अ फार्मूला sin of 90 degree minus theta is equals to cos theta. Sin 90 degree theta, sin 90 degree minus theta is equals to cos theta. Cos theta. Similarly, फिर से देखो यहाँ इस एंगल के हिसाब से cos 90 minus theta, तो according to this angle base is BC and hypotenuse is AC. Yes, sir. अब इस एंगल के हिसाब से BC क्या है? Perpendicular and AC is hypotenuse, so perpendicular by Sin hypotenuse theta. we can write here sin theta. Sin Similarly, according to this angle tan means AB and by BC, but according to this angle cosec theta. idiot, according to this angle this is perpendicular, this is base, so perpendicular by base is tan theta. Tan theta.
ये 10 cot था, theta. इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन था? ए बी। इस एंगल के सर हिसाब कॉट से थीटा। ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये बेस है, सर कॉट थीटा। तो ये देखो बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा। बाकी खुद से बना के जरा लिख के बताओ क्या होगा। ये जो 3 जो बच गए हैं ना, इसको लिख के और बताओ क्या होगा। cosec is equal to sec theta होगा। हम्म, sec इक्वल टू cosec थीटा होगा सही है। और tan is equal to cot theta tan इक्वल टू cot Tan is थीटा equal to होगा। cot theta. तो ये सेक बन जाएगा, tan थीटा होगा। Cot ये कॉसेक थीटा बन गया और ये कॉट थीटा बन गया। आया समझ में? yes sir Means here we get the formula कि sin 90 minus theta is equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, and tan 90 minus theta equals to cot theta। यहाँ गलत हो गया, फिर सेम लिख दिया है मैंने, tan cot लिखना था यहाँ पे, सॉरी, here should be cot, तो यहाँ हो जाएगा tan। tan थीटा cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equal to cosec theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta। Means these are complementary angles। ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर सम करोगे, इस एंगल और इस एंगल का 90 आएगा। तो इस तरह से अगर यहां जैसे देखो sin 51 डिग्री कैन बी रिटन व्हाट? sin 51 को क्या लिखा जा सकता है? तो देखो 51 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 51 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई बताएगा? व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ? Yes sir. क्या होगा? 39। तो देखो sin 39 51 को हम लोग 39 डिग्री। cos 39 डिग्री लिखा जा सकता है। yes sir क्या लिख सकते हो? sin 51 को Cos- क्या लिख सकते हो? cos 39। अब ये 39। कैसे लिखा गया? हाउ 39 डिग्री है। इट इज रिटन? इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन 90 minus 39 डिग्री। सी हियर, ये देखो sin 51 कैन बी रिटन sin 90 डिग्री minus 39, because when you subtract this 39 from 90 you get this। तो according to this formula sin 90 minus theta equals to क्या हो रहा है? cos theta। तो यहाँ भी sin 90 minus 39 will become cos 39। So in this way, note down this formula. We will use this formula to solve the questions. Note it down। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन जो दिया है, इवेलुएट। नोट इट डाउन। excuse me sir Time is going on. हाँ, क्या बोल रहा है भाई? सर हाँ excuse बोलो me सर। बोलो। सर क्या हम लोग मतलब 60 और 90 डिग्री का भी जियोमेट्रिकली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू? किसका? 60 और 90 डिग्री का। 60 और 90 का ही तो बताया ना आज। 190 का बताया, 60 का भी बताया। सर तब नहीं समझे। आज मैंने बताया 90 का और 60 का, दोनों का बताया। आज 45 का बताया। ऑलमोस्ट सब आज मैंने बताया है। अगर दिक्कत है तो फिर बताया जाएगा, नो प्रॉब्लम। पहले इसको समझो। ओके सर। हो गया?
ये नोट कर लिए? हो गया सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके। See here exercise 8.3. Yes, sir. Exercise 8.3 question number first. Evaluate नॉट सिलेबस। first one is sine 18 degree by cos 72 degree. See here carefully, ध्यान से देखो। हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट पढ़ाया जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज थे। साइन 0 का था 30, 45, 60 एंड 90। इनका भी वैल्यूज होता है। साइन 18 का भी एक वैल्यू होता है। एक बड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आता है जिसमें किसी भी एंगल का वैल्यू वहां से निकल सकता है, लेकिन वो टेबल न तो याद रखा जा सकता है और न बनाया जा सकता है। तो उसका क्या तरीका है कि हम उस टेबल को देखेंगे और वैल्यू बैठाएंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ देखो, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है और दोनों अलग एंगल है जो चार्ट में नहीं दिए हुए हैं। तो वी विल यूज हियर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री देखो इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखो, ये साइन 18 है और ये कॉस 72 है। तो मैंने क्या बताया है कि 18 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 72। और साइन किस में जाएगा? कॉस में। तो कॉस 72 लिखा जा सकता है। लेकिन मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने के लिए ये जो फार्मूला जो बनाए हम लोग, दिस कैन बी रिटन साइन 90 माइनस 72। देखो साइन 18 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72। अब देखो, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रहेंगे तो एक को ही चेंज करोगे। किसको चेंज करोगे? ओनली वन। दोनों को नहीं बदल देना है। अब ऐसा नहीं कि नीचे वाले को भी चेंज कर दो तो फिर वापस प्रॉब्लम वहीं रह जाएगा। नाउ वी नो ऑलरेडी कि साइन 90 माइनस थीटा मींस कॉस थीटा, it is cos 72 and in denominator will also cos 72, both will be cancelled, this value will be 1। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 1 In the same way you have to solve the कैसे question। cos 72 आया? हाँ, वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ऐसे करना है हम लोगों को और ट्राई करो। एक्सक्यूज मी cos सर। 72 कैसे है? तीसरी वाली लाइन नहीं समझ। सर बोलो। सर हम लोग नीचे को भी ले सकते हैं, नीचे वाले को भी। यस यस, वी कैन चेंज Okay, दिस sir. वैल्यू आल्सो। इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, सर दोनों में से कोई एक ले सर। किसी एक को सर चेंज तीसरी करेंगे। वाली लाइन नहीं समझ में आई है। ये ना, यहाँ पे कुछ समझना ही नहीं है। दोनों cos 72 कट गया। फिर cos 72 कहाँ से आया ऊपर वाला? ये यहाँ से आया। 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा बताया जाता है कि थिंक पॉजिटिव। सुन लो जरा, हेलो लिसन मी। एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है तो कोई उसको क्या बोलता है कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, और कोई उसी को क्या कहता है? दूसरे तरह से क्या कह सकते हो कि ग्लास आधा खाली है। तो उसी तरह से यहाँ भी है। ये साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 72 एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस 72 हो गया। डेनोमिनेटर एज इट इज रखा मैंने। तुम चाहो तो डेनोमिनेटर को ही चेंज कर दो, न्यूमरेटर वही रहेगा, फिर भी कट जाएगा। इसी को कोई स्टूडेंट इस तरह से कर सकता है, ही में change the denominator. Cos 72 can be written 90 degree minus 18 degree. So this will become sin 18 degree and cos 90 minus theta. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा sin theta. Again both will be cancelled. Value 1. ये दोनों दो तरीके हैं, दोनों ही सही हैं। Either we change numerator or denominator.
और किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर तो फिर आगे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और एक एक्सरसाइज इसमें रह गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? उनके लिए स्पेशली दोज हु वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स इन क्लास 11। क्लास 11th में जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मीन्स साइंस से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज एवरीवेयर, अलजेब्रा में भी होगा, ज्योमेट्री में भी होगा। ट्रिगोनोमेट्री तो है ही, ट्रिगोनोमेट्री के अलावा हर टॉपिक में इसका यूज होगा। और उसका बेस यही है, द बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज दिस, और सारे फार्मूला बस इसी से बनते हैं। सो टेक केयर ऑफ इट। इन फार्मूलाज को थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो सर। फर्स्ट का फोर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसी में फर्स्ट का फोर्थ